Good morning, everyone. Today I'm going to start with a new chapter, chapter number 17. It is provisions and reserves. This is a theoretical chapter. So, firstly, the meaning of provisions and reserves. Before that, I told you that there are different kinds of uncertainties in our business. Some are expected or some are unexpected. Some kind of liabilities are there which may be definitely arise in future. We know about that kind of liability will be arise in future. It is expected liability. And some kind of liability या expenses are this kind of nature कि उनका कुछ भी हमें नहीं पता, वो suddenly arise होते हैं. They are called the unexpected liabilities or the expenses. So we will create different kinds of provisions and reserve for meeting such kind of future expected or unexpected losses or liabilities. So for that, two terms are there. One is provision and the second one is reserves. So I'll start with the first one, provision. As per the Companies Act, provisions means the amount retained by a businessman for meeting future certain liabilities or for covering future certain losses. We are already aware about such kind of losses. They will definitely arise in future. और हम क्या कर रहे हैं, उन लाइबिलिटीज़ को कवर अप करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को सेव करके रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन द लाइबिलिटी विल अराइज वी हैव टू pay that liability out of the amount which we saved as provisions. So they are called the provisions. So the meaning is the amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal, demolition in the value of assets. You know कि एसेट्स को अगर आप यूज़ करोगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज भी होगी. सो हमें पहले से ही पता है कि बाय द यूजेज ऑफ एसेट द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन एसेट. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर मीटिंग सच काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन या सच काइंड ऑफ डाइल्यूशन एक्सपेंसेस. So in the liability is certain to us, is known to us, and we are retaining a part of our profit for meeting such liability. That is called the provisions. For example, इसका मैं जर्नल लाइफ से एक एग्जाम्पल लूँ कि सपोज योर पेरेंट्स आर हैविंग मनी या अर्निंग फॉर अ मंथ. सपोज दे हैव ₹50,000 अर्निंग फॉर देयर मंथ. अब वो क्या कर रहे हैं, उस ₹50,000 में से वो लगाओ अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्पेंड कर देते हैं, 20,000 रुपीज़ सेव करके रखते हैं, बिकॉज दे नो कि उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस जो पहले से उनको पता है पे करना ही करना है. सो दे आर रिटेनिंग, दे आर सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम जस्ट बिकॉज वो उस एक्सपेंस के लिए पहले से ही अवेयर हैं कि ये तो डेफिनेटली फ्यूचर में आएगा ही आएगा. सेम एज इट इज़ इन आर बिजनेस कि the businessman is already aware about such kind of liabilities which may be arise in future. So they are retaining a part of their profit so that in the future when the liability will arise, they will cover up the amount from that retained portion. So that is the meaning of provisions. There are different examples of provisions. Such kind of losses or expenses are aware. फर्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, यू नो कि इनकम जो होगी उसके ऊपर टैक्स तो हमें डेफिनेटली पे करना ही पड़ेगा. प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हम क्रेडिट में सेल्स करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ डेटर्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जो हमारा पैसा नहीं देंगे या हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो वी आर रिटेनिंग अ पार्ट एज प्रोविज़न. प्रोविज़न फॉर रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ एसेट्स. एसेट्स को रिपेयर करवाने की या रिन्यू करवाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी. सो फॉर दैट वी आर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ अवर प्रॉफिट एज प्रोविजन्स. Now the characteristics or features. Provision is made to meet a known liability. As I said, कि this liability is known to me. We are already aware about this liability कि ये arise होगी ही होगी. So provisions are made for the known liabilities. The liability is known but the exact amount is not known. मतलब हमें पता है कि टैक्स हमें देना ही देना है, हमें पता है एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, बट एक्चुअली कितना अमाउंट लगेगा डेप्रिसिएशन का, एक्चुअली कितना अमाउंट लगेगा टैक्स का, ये हमें नहीं पता. सो जस्ट हम अपनी अजम्पशन के बेसिस पर, अपनी फोरकास्टिंग के बेसिस पर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम एक सेव करके चलते हैं. सो वी नो द लाइबिलिटी बट वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ दैट लाइबिलिटी. Provision is a charge against profits. This provision is chargeable against profit. Means जो आप अपना प्रॉफिट्स मतलब जो इनकम्स होती हैं उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. तो इन प्रोविजंस को हम
अपने एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करके इनकम्स में से लेस करके उसके बाद हम नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. सो दे आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. मीन जो भी हमने इनकम या प्रॉफिट जनरेट किए हैं उसमें से लेस करने के बाद ही आप अपना एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कह सकते हो. प्रोविजंस में से निकालने के बाद ही आप कह सकते हो कि इतना मुझे प्रॉफिट हुआ. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट्स. और कंपनी किसी भी ईयर में अगर सपोज उसको लॉसेस हैं तो उस सिचुएशन में चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो तो उस सिचुएशन में एज आई सेड कि उस सिचुएशन में फर्म जो प्रोविजंस पहले से क्रिएट किए हुए हैं उसमें से अपने लॉसेस को कवर अप कर सकती है. नाउ द पर्पस ऑफ प्रोविजंस टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. We want to know about the exact amount of profit or loss earned during this year. So this will be find out only when you will show provision in your profit and loss account and you will show कि इनकम्स में से ये प्रोविजंस चार्ज करने के बाद ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें बचा है. सो यू कैन बी डिटरमाइंड योर ट्रू प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोविजंस. टू असर्टेन द ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बैलेंस शीट से रिफ्लेक्ट होती है. जो प्रोविजंस हैं आपके एंटीसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं. एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाले लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, whether it is provision for depreciation or it is for tax or it is for bad debts. So we can find out the financial position of a business only in that situation when we are showing the correct amount of provisions in the balance sheet to provide the for known losses in the future. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो कंपनीज प्रोविज़न क्रिएट करती हैं वो फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज़ को कवर अप करने के लिए. नॉन मतलब जिसका हमें पहले से ही पता है कि डेप्रिसिएशन लगेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा, एसेट्स को रिपेयर करवाना पड़ेगा. सो दे आर मेड फॉर द नॉन लॉसेस विच विल बी अराइज इन द फ्यूचर. फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को हर साल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी हमें प्रोविजंस क्रिएट करना ज़रूरी है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि कोई भी मशीन है उसकी लाइफ है 10 ईयर्स और उस मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है और उस मशीन के ऊपर हमें 10,000 रुपीज़ की रिपेयर स्पेंड करनी है. तो हम क्या करेंगे 10,000 रुपीज़ को 10 ईयर्स में डिवाइड करें तो हर साल हम 1,000 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाएंगे फॉर रिपेयर. बिकॉज वी नो कि वी नीड रुपी 10,000 फॉर द रिपेयर ऑफ दैट मशीन आफ्टर 10 ईयर्स. क्योंकि अभी खरीदी है तो 10 साल के बाद ही उसको ऑब्वियसली रिपेयरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी. So we are making 1,000 provision every year so that after the end of 10 years जब मुझे इकट्ठे 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आई कैन यूज़ दैट मनी बिकॉज मैं उसके लिए पहले से ही अवेयर थी और मैंने पहले से ही पैसा एज अ प्रोविज़न क्रिएट किया हुआ था. सो दिस इज़ द प्रोविज़न. नेक्स्ट वी हैव द रिजर्व्स. Reserves are different than provisions. Provisions are made for meeting future non-liabilities. Now about the reserves. Reserves are again a part of profit is retained by the businessman for covering future unknown liability. I said unknown. जिस liability या जिस loss के बारे में हमें नहीं पता है जब हम उसके लिए a part of profit retain करके चलते हैं that amount of portion या profit is called the reserves. अब जैसे आपके घर का ही एग्जांपल लें कि मैंने पहले बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो मुझे पता है तो उसके लिए मैंने जो क्रिएट किया दैट इज़ प्रोविज़न. अब सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए जो पैसा किसी की शादी आ जाती है सडनली तो उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हमें उसके लिए पहले से नहीं पता हमें उसके बारे में. बट हम कुछ आपके पेरेंट्स डेफिनेटली कुछ सेविंग्स करके रखते हैं सो दैट कि किसी भी तरह का कोई भी सडनली एक्सपेंस अराइज हो जाए. इट में भी किसी की वेडिंग में जाना हो, किसी के कोई डिसीज़ हो जाए, हॉस्पिटलाइज होना पड़े. सो फॉर दैट वी आर retaining a part of our savings that is called the reserve. So same as it is in companies, when the companies are retaining a part of their profit for meeting future unknown liabilities, they are called the reserves. जो प्रोविजंस है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं. बट दीज रिजर्व्स आर शोन इन योर बैलेंस शीट एज द पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी. दे आर नॉट चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट्स. दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविजन रिजर्व्स आर हेयर. Journal reserve, capital reserve, dividend reserve, investment reserve, workman compensation, replacement of debentures.
So these are some examples of reserves. As I said, they are not chargeable against profit, so we will not show this in the profit and loss account. This will be recorded in one different account, that is profit and loss appropriation account. अभी सिर्फ इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानना. जब हम क्लास 12th में जाएंगे उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर यही है जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं. तो जो रिजर्व्स होते हैं आप याद रखिएगा, बस इतना सफिशिएंट है कि प्रोविजंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होते हैं और जो P&L एप्रोप्रिएशन है उसमें रिजर्व शो किया जाता है. और रिजर्व्स फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज़ के लिए होता है और प्रोविज़न फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज़ के लिए होता है. दोनों सिचुएशन में हम प्रॉफिट्स को रिटेन करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम फीचर्स ऑफ रिजर्व. इट इज़ द पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज़ अनडिवाइडेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड या रिटेन प्रॉफिट. क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ नॉट अ लीगल नेसेसिटी. जो प्रोविजंस है वो बनाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है पहले से कि दैट काइंड ऑफ लायबिलिटी विल डेफिनेटली अराइज, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन टू क्रिएट रिजर्व. इट्स द चॉइस ऑफ द बिजनेसमैन. अगर वो चाहे तो इसको बना सकता है, ना चाहे तो ना बनाए. नॉर्मली इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नॉन लॉसेस, इट इज़ क्रिएटेड फॉर द अननोन लॉसेज. एज आई सेड, रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ये बिजनेस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में शो किया जाता है. अगर हम इसको रिटेन करके ना रखते तो ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट दिस इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, सो इट इज़ कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड विल बी शोन इन द लायबिलिटीज एज रिजर्व्स. When the amount of reserve is invested in outside securities, it is known as reserves fund. अब जो पैसा मैंने रिटेन करके रखा हुआ है फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज़ के लिए, अब एक बिजनेसमैन चाहे तो इस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकता है एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न करने के पर्पज से. सो दैट प्रॉफिट या दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द रिजर्व्स फंड. Now again we have the purpose why we create such reserves. हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लायबिलिटीज़. फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज़ कवर होती हैं इससे. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच वी आर शोइंग इन द लायबिलिटीज़. तो जो हमारा लायबिलिटीज़ में रिजर्व्स का सेक्शन है वो इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली बिजनेस की पोजीशन साउंड होगी. इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर. अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाइड करना चाहती है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं जो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो उनको हर साल अगर आप सेम रेट ऑफ अमाउंट से डिविडेंड दो देन दे विल बी सेटिस्फाइड. सो वी विल यूज द अमाउंट ऑफ दिस एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द शेयर होल्डर्स टू प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक लायबिलिटी. किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए हम रिजर्व्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया है, फंड बोला है. डिवेंचर्स अभी आपको मीनिंग नहीं पता क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एसेट की रिपेयरमेंट करवानी है आफ्टर 10 ईयर्स, फॉर दैट आई नीड ₹10 लाख, तो मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स सेव करके रख रही हूँ बिकॉज वी नीड टू रिप्लेस द एसेट आफ्टर 10 ईयर्स. सो वी आर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट एज रिजर्व. सो 10 साल के बाद मैं उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती हूँ. तो हम इसके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट कर रहे हैं just for the replacement of that asset. So these kinds of funds are provided for meeting a specific liability. So next we have the difference between provisions and reserve. It is your duty to read out the difference क्योंकि मैंने आपको दोनों के मीनिंग बता चुकी हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिजर्व दैट आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो. अप टू दैट रीड आउट दिस टॉपिक and watch the video very carefully. Thank you so much.